morning, students. Once again, I welcome you back to my YouTube channel, Manish Bansal Classes. And today I am here with the practice on Chapter 2 Electricity. And today we are going to practice on some numericals. As we have completed some of the theory part, and in that part we have completed till electric current. So we are going to practice numericals on that topic. First of all, let me explain. There are three formulas that we are going to use in today's numericals. First one is Q equal to NE. What is Q here? Q is the total charge. What is N here? N is the number of electrons and E is the charge on one electron. And what is the second formula? I equal to Q by T. And the symbols have their usual meaning. I is the symbol of current, Q is the charge, T is the time. And the third one, you just look at the board very carefully. I equal to Q by T. If can I replace Q equal to NE? क्या मैं Q की जगह NE रख सकता हूँ? Of course रख सकता हूँ, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है? NE होती है. तो in the third formula that I have derived using the first and second formula, so I equal to NE by T. ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हो. क्या दी हो? हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हो और हमें डायरेक्टली करंट निकालनी हो, हमें चार्ज नहीं दिया हो. अगर हमें चार्ज दिया है, टाइम दिया है, करंट निकालनी है, तो ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और कितना चार्ज होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. So I hope you all these three formulas are very clear to you. Now we move on to the first question. कैलकुलेट करंट. हमें इसमें करंट निकालनी है. क्या निकालनी है? हमें इसमें करंट निकालनी है. इफ 200 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड. अगर 200 कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज? 200 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ वायर इन कितना सेकेंड? 10 सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन Q 200 coulomb with unit, time equal to 10 seconds. What is to be identified? I equal to question mark. Now after writing the given in the form of symbols, always write the given values in the form of symbols, so that it will help you in identifying the formula which is to be applicable here. So do you think that you remember any formula having these three quantities? I equal to Q by T. Yes, this is the formula, Q by T. Now what is the value of Q? 200. What is the value of T? Time will always come in seconds, that is 20 ampere. One more unit of current, that is Q. What is the unit of Q? Coulomb. And time is unit second, so coulomb per second, CS minus 1. This is also one more unit of current, coulomb per second. I hope you remember what is the definition of 1 ampere current. 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में पास होता है, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड जब पास होता है, तो हम उसको 1 एम्पीयर करंट कहते हैं. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. इसमें हमें चार्ज कैलकुलेट करना है 2000 इलेक्ट्रॉन पर, 2000 इलेक्ट्रॉन्स पर. आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. सो अगर मैं आपसे कहूं सिंपली, ये एक बनाना की रेट 2 रुपया है, तो 10 बनाना की रेट कितनी होगी? दिस इज अ सिंपल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और ज्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड होता है. हमें एक की वैल्यू पता है जो कि इतनी है, तो हमें 2000 की पूछी है, तो क्या हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? तो हम इसमें लिखते हैं पहले तो गिवन वैल्यूज, कैलकुलेट चार्ज. तो चार्ज हमें निकालना है. क्या निकालना है? हमें चार्ज, क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं हमें, कितने? 2000 इलेक्ट्रॉन्स. क्या हमें E की वैल्यू पता है? ये हमें दी नहीं है, बट वी ऑलरेडी नो दिस वैल्यू. दिस इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू. अब आप सोचिए, क्या आपको इन तीनों क्वांटिटीज से मिलकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ऑफ कोर्स, Q इक्वल टू NE. सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला. By only you can write the given quantities in symbols, only then you will be able to identify the formula. Now Q, N की वैल्यू 2000 into E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. Now let me show you how to solve
द न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग जीरोस एंड पावर्स। ध्यान से देखिएगा, आप 2000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 जीरो से, यानी कि जिसमें एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें 3 जीरो हैं, तो जो भी आपको पावर दी है उसमें 3 पावर प्लस हो जाएंगी। कितनी पावर प्लस हो जाएंगी? 3 पावर प्लस हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, 2 मैंने केवल इन 3 जीरो को मल्टीप्लाई किया है, तो 2 इंटू यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 3, कितनी पावर प्लस हो जाएंगी? प्लस की 3 पावर ऐड हो जाएंगी और माइनस 19 में होंगी। आप इसका मल्टीप्लाई करें, 16 टू जा 32, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम, दैट इज योर आंसर। आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर टू यू। कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये देख लीजिए कितनी जीरोस का मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने जीरो होंगे मल्टीप्लाई में उतनी ही पावर्स आपकी कम हो जाएंगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट? करंट की वैल्यू क्या होगी अगर 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास इन 6 सेकेंड। अब आपको यहां ध्यान देना होगा, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट? आई क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन 18.75 into 10 to the power 18 electrons. Now time is 6 seconds. And one more thing, जब आपको n दिया है तो e की वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि n और e साथ साथ चलते हैं। 0.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Now these four values are given to you. अब आप सोचिए, क्या इन चारों वैल्यूज को मिलाकर आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ऑफ कोर्स देयर इज वन फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई इक्वल टू नेट, आई इक्वल टू नेट, बट नेट में क्या है? एन ही ऊपर आएगा, टी नीचे आएगा। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, आई इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी है? 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन टाइम, टाइम इज 6 सेकेंड। ओके, अब आप एक चीज का गौर करेंगे, मैं इसको 18.75 की जगह 1.875 लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं? 1.875, यानी कि मैंने जो संख्या है उसको छोटा कर लिया। 18.75 से 1.875 छोटा होता है, और मैंने डेसिमल के अंक को, दशमलव के अंक को, एक दशमलव की जो पॉइंट होता है उसको मैंने एक अंक लेफ्ट में सरकाया है, यानी कि संख्या छोटी हुई है। और जो संख्या छोटी होती है तो पावर प्लस हो जाती है। तो कितनी पावर प्लस हो जाएगी? 10 की पावर 18 से हो जाएगी 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर प्लस 19 ऑटोमेटिकली चली जाए, कैंसिल हो जाए। अब हमारे पास क्या बचा? अपॉन में 6 है। नाउ वी विल सी, आई विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। नाउ look, I equal to, I will multiply 1.6 and 1.8. कितना करेंगे हम? 1.6 और 1.8, that will come 3 अपॉन 6। कितना आएगा आपका? 3 अपॉन 6, और ये आपका आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.5 एम्पियर। बताइए, क्या ये टॉपिक समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने एक चीज नोट की कि हमें जहां पर एन दिया है वहां पर ई हमें ऑटोमेटिकली लिखना ही पड़ता है। अच्छा, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको उसको सॉल्व करने का, जो ओरल तरीका है। इसमें आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना होगा। इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ध्यान से देखिए, और इस वैल्यू को आप याद रखें कि 1 कूलाम इक्वल टू
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 ये होते हैं 1 कूलम चार्ज। ये कितना चार्ज होता है? 1 कूलम चार्ज होता है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप कह सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 कूलम चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलम चार्ज के बराबर होती है। अब 6.25 और 18.75 में कितना है? 3 गुने, 3 टाइम्स का डिफरेंस है। 6 3 जा 18 और 25 3 जा 75, मींस ये 3 गुना है। ये इसकी कितने गुना है? 3 टाइम्स है, और पावर है कितनी? 18 ही है। मतलब ये हमें कितना चार्ज दिया होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए, ये कितना चार्ज है हमारा? ये हमारा 3 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है ये? 3 कूलम चार्ज है। अब 3 कूलम चार्ज आपने यहां से निकाल लिया। 3 कूलम चार्ज 6 सेकंड में जा रहा है। 3 कूलम चार्ज 6 सेकंड में जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल टू क्यू बाई टी। 3 कूलम कितने सेकंड में जा रहा है? 6 सेकंड में। तो 3 कूलम यहाँ पर चार्ज आ गया, टाइम कितना आ गया? 6 सेकंड आ गया। तो अल्टीमेटली आपकी करंट कितनी आएगी? 0.5 एम्पियर आएगी। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक केवल तभी पॉसिबल है जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल मींस 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ऐसे हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई और वैल्यू दी जाएगी फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 कूलम चार्ज। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देकर चार्ज पूछा था, इसमें चार्ज देकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिएगा, Q इक्वल टू 4 कूलम, N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला क्या याद आता है? Q इक्वल टू N। पर क्या हमें इसमें Q निकालना है? नहीं, हमें इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू दिस विल कम एट द बॉटम, Q अपॉन E। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अच्छा, मैंने N को इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि अक्सर बच्चे N को इधर लाने के चक्कर में साइड्स में गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यही रखा है। लेट इट बी देयर, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बल्कि ये आपके सवाल को और आसान कर देगा। Q, what is the value of Q? 4. What is the value of E? 1.6 into 10⁻⁻19 इक्वल टू N। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, पहले तो इसको मैं पॉइंट हटा के इसको 0 कर देता हूं। ये पर कर सकते हैं, आपको पता है। एक आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट ये है कि जब भी 10 की कोई पावर नीचे होती है उसको ऊपर लाना है, या ऊपर है उसको नीचे लाना है, तो हम पावर का साइन पलट देते हैं। यानी कि पावर प्लस से माइनस हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाती है। देखिए कैसे। सो 40 इंटू 10⁻⁹, क्लियर हुआ ये, अपॉन 60, ये है इक्वल टू N। यानी कि 40 ऊपर रहेगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाकर 10⁻+19 हो जाएगी। हम इसको काट देंगे, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, और ये आपका आ गया 4 से कटेगा 2.5। सो योर आंसर विल बी 2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर होगा। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 2 सेकेंड। अब आप इस सवाल को गौर से देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट दी गई, ये टाइम दिया गया है, यानी कि फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। इसमें चारों चीजें आपको मिल जाएंगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन मार्क, गिवन। गिवन में क्या क्या दिया है? I 2 एम्पियर, E ये तो आपको हमेशा गिवन ही रहता है, और क्या दिया है आपको? टाइम 2 सेकेंड, एंड वन मोर थिंग इज N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो क्या इसको याद, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? यस, I इक्वल टू NE अपॉन T। तो ये फॉर्मूला आपको
याद हो जाना चाहिए अभी तक। अब आप ये देखें, आपको उसमें निकालना क्या है, आपको उसमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं रहने दीजिएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ई कहाँ आ जाएगा नीचे। तो आई एन अपॉन आई टी अपॉन ई इक्वल टू एन। दिस इज योर फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पावर जहां पर आती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़िए, इनको समझिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूले याद करके रखिएगा। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और इस तरह के मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उनको भी आप ज़रूर सॉल्व करें, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।